of coronavirus, we are unable, we were unable to join school, and I were unable to teach you. So regarding Paradise House, the Paradise House Padwa, we have started a new setup, which may you may call video class, or you may call the online classes for 6th to 10th students. Here today I am representing the lecture for class 9th physics, and I will start it from laxity. There are numerous number of chapters in your book. It may be 11 or 12 chapters, and I am starting it from laxity. So I want you two people to please take out your rough copy, a pen, and a pencil if it is required. Second thing, I want you to please concentrate on this class. This may be very useful for you, as you all know that we were unable to start our classes, the summer vacations, summer classes. So this is an idea to represent the lectures in front of you. So please cooperate with it, and let's get started. Now, first of all, I will start laxity. In this very chapter, there is a vast chapter of this book, laxity, and as you know, we have studied it also in class 7th, class 8th, and now we are studying in class 9th also. In 9th, we have just the advanced version from the class 8, as you have studied. So let's get started. Class 9. Are you ready? Okay. So this is the laxity. Okay. One more thing. If you have any doubt regarding this class, or if you have any queries, if you have any suggestions about this video lecture, so you can do it in comment section as soon as possible, so we can recover it, we can clear it. Okay. So first of all, laxity, as you know, I will start it from the very first point of this chapter, which is it very well, charged particle. And before that, I will explain you the basic thing. This is, what is electricity? Electricity. What is electricity? As you all know, my dear, electricity is defined as the flow of electric current. Now the question arises, what is electric current? The electric current is what? The flow of charged particle, as you have studied in the previous classes. I know it very well that you have studied it, but I have to explain it again. Electricity. What you know? The flow of electric current, and you may represent the electric current with capital I or small I, as you wish. I or small I. That is the representation, that is the notation of electric current. Now the question arises, if the electricity is the flow of electric current, then what is the current? What is electric current? And there are so many currents. There is a heat current, there are wind currents. So you have to specify which type of current you are speaking or talking with. So I am talking about electric current. So electric current means electric. So electric current, this term, what you call it? What is the definition of this term? I would say the electric current is defined as the flow of charge
The flow of charge particles. Okay? The flow of charge particle. See, I know that you know this all, but for the starting of this chapter, we have to discuss this. It is just for a revision, as you can say. Now, I have said that what the flow of charge particle is what the electric current. And charge particle you can denote it by small capital Q or small q as you wish. But one thing, remember one thing, that if you are using current, if you are specifying current with capital I, है ना, and in the formula I is equals to Q upon T. If you are using there I in capital, then it's mandatory and you have to put capital Q there. In the formula I is equals to Q upon T. But if you are using small I in the formula I is equals to Q upon T, then you should use small q there. That's the main point. Remember that. Okay. Then I will discuss this later. Okay. If you don't get it, don't be afraid. Okay. Don't take it. Don't worry. I will just clear it further. The flow of charged particle Q or small q. It's known as what? Electric current. Now the next is, what is charged particle? The question arises. The basic question is, what is charged particle? The charged particle is what? The charged particle, the particle, वो पार्टिकल्स होते हैं जिनको जब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, कहाँ पे रख दिया जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो कहाँ पे रखेंगे हम? किसी चार्ज पार्टिकल कहाँ पे रखेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे अगर उस पे कोई फोर्स लग रहा होता है, ऐसा पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद उसमें क्या लगने लग जाए? फोर्स लगने लग जाए, मतलब वो इधर से उधर भागना स्टार्ट कर दे और कोशिश करे कि अपनी जगह चेंज करे, है ना? और अगर ऐसा हो रहा है तो ही वो चार्ज पार्टिकल, तभी वो चार्ज पार्टिकल कहलाएगा, तभी वो मतलब आपका जो पार्टिकल है दैट विल बी कॉल्ड एज अ चार्ज पार्टिकल। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपने किसी भी कंकड़ पत्थर को उठाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या उसमें फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इसलिए वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? बस नहीं लग रहा है, वो चार्ज पार्टिकल नहीं है, दैट्स व्हाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चार्ज पार्टिकल वो ही पार्टिकल है जिसको जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या लगने लग जाएगा? उसमें लगने लग जाएगा फोर्स। ऐसे ही पार्टिकल को हम बोलते हैं चार्ज पार्टिकल, जिसमें लगने लगता है फोर्स जब हम उसको रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो चार्ज पार्टिकल्स आर दोस पार्टिकल व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? If you have any problem, if you have doubt, then comment. Please comment. Okay. Flow of charge particle. Charge particles. I am talking about more than one charge particle. Then I am putting S here. The charge particles are those particles. If you have any problem with the handwriting, then you can also tell me in comment section. The charge particles are those particles which when placed in an electric field experiences electric force. Clear now? This is the definition of charge particle. अब चार्ज पार्टिकल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से।
ये हम जानते भी हैं क्या होता है। अब इसके टाइप्स भी देख लें कि चार्ज पार्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं दो टाइप के, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर नॉट? पॉजिटिव चार्ज वो चार्ज पार्टिकल है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो बाहर जाते हुए दिखेंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कुछ नहीं है, पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के आसपास का जो भी एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो चार्ज पार्टिकल के आसपास का जो फील्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। एंड माय डियर, आपको इस क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी पढ़ना है ना? क्योंकि पिछले क्लास में क्या हुआ था कि हमने सिर्फ एक डेफिनेशन ही देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके अलावा हमने उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है हमको, है ना? हमको कूलम्स लॉ निकालना है। कूलम्स लॉ शायद हमने पिछले साल भी पढ़ा था, तो इस साल भी हम उसको फिर से रिवाइंड करेंगे और उसके बाद वहां से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला उसकी यूनिट के साथ। तो मैं उसमें बहुत ही अच्छे से जाने वाला हूँ बाद में, पर अभी आप इतना समझिए। तो चार्ज पार्टिकल के अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है तो मतलब वो चार्ज पार्टिकल कहलाएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। If the direction of electric field is outward, radially outward, then this particle is known as what? Positive charge particle. And अगर इसका मैं उल्टा कर दूं तो अगर मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां हो? अंदर की तरफ हो। कहां? अंदर की तरफ हो, तो ऐसे पार्टिकल को हम बोलते हैं क्या? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, सच एज इलेक्ट्रॉन। यू कैन से इलेक्ट्रॉन। ओके, तो भैया बात इतनी सी है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है तो वो नेगेटिव कहलाएगा। क्लियर है बात? और ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत ही आगे जाके एक मतलब बड़ी बड़ी क्लासेस में तक इसका यूज है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझें कि पॉजिटिव चार्ज क्यों कहलाता है। हालांकि इसका कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि ऐसा क्यों है कि पॉजिटिव चार्ज में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लेते हैं। ये कन्वेंशनल है, ये माना गया है। क्लियर नॉट? आपको इसमें नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? बाहर की तरफ है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है? अंदर की तरफ है। बात समझ में आ रही है? नहीं आती समझ में? तो दिस इज द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। क्लियर नॉट? नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटू पार्टिकल है ये जो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो सकता है अभी तक जो हम जानते हैं। और पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या हो सकता है? यस, प्रोटॉन। प्रोटॉन वुड बी द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना? ये एग्जांपल है। अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं? ये एटम के अंदर रहते हैं, है ना? केमिस्ट्री में आए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं और प्रोटॉन कहां होते हैं। प्रोटॉन आपके पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, और उसके चारों ओर जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सो आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो पार्टिकल है जिसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, है ना? द पार्टिकल्स फ्रॉम विच द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is outward। और आप इसमें एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि थ्रू रेडियस ही वो जो है आगे की तरफ निकलता है। मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूँ, पेज अपना वो जो है भर चुका है। तो इफ यू आर राइटिंग इट, अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं
वैसे बैठना भी चाहिए आपको। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो मैं 2 मिनट के लिए रोक देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का डायग्राम बनाऊंगा और फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डायग्राम बनाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ये सब कॉपी में चाहिए आपकी, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट बनाइए इसका। चलिए नेक्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मैं बनाता हूं आपको डायग्राम। डायग्राम कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होंगी, बाहर की तरफ होंगी, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन पे होंगी। आई विल शो यू हाउ। Yes, now look at here. I'm going to show you the diagram of positive charge particle. Look at here. See, suppose ये कोई positive charge particle है, इतना बड़ा नहीं होता है। मैंने आपको बनाने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि this is your positive charge particle. Clear? आप बात कर रहे हैं किसकी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी बेटे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे। लुक एट हियर, ऐसे बेटा नंबर कट जाएंगे अगर आपने एरो नहीं बनाया तो। You have to make a well diagram. Clear? Let's make one more line and complete the diagram. This is your positive charge particle और उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कहाँ पे है, बाहर की तरफ। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन। ये 3 डायमेंशन होता है बेटा, क्योंकि बोर्ड में 2 डायमेंशन फिगर ही बनता है। दैट्स व्हाई देयर इज अ कंपल्शन हियर, आई कांट मेक द 3 डायमेंशन, है ना। एक स्फीयर है, उसके चारों तरफ से सपोज फॉर इंस्टेंस दिस इज योर चार्ज पार्टिकल, तो उसकी हर जगह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे सर ने बना दिया तो वो ऐसे कहेगा, नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह से निकलेगी बेटा, है ना। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सपोज इट इज एज अ प्रोटॉन। क्लियर और नॉट? नो, द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल the particles in which the direction of electric field is readily inward. The particle the direction of what, electric field. Direction of electric field is readily inward. Are you getting my point or not? है ना, are readily inward. Example इसका क्या हो सकता है, example इसका हो सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब इसका डायग्राम मैं इसके जस्ट बगल में बना रहा हूं, डोंट बी कंफ्यूज, ओके। सो डायग्राम विल बी लाइक दिस। सपोज ये कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, क्लियर, एंड आई एम गोइंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लुक एट हियर।
सी इट्स रेडियली इनवर्ट, अंदर की तरफ नहीं, देखिए मतलब चार्ज पार्टिकल की तरफ आएंगी, ठीक है। वैसा यहां भी बना दूं मैं, like this. This is the direct diagram of negative charge particle having the electric field, having the direction of electric field radially inward. Are you getting my point or not? This is your negative charge particle. Example: electron. This is your charge particle. Types of charge particle. Take a screenshot of this so that we can move further. Okay. Now the next is Coulomb's law. Coulomb's law we have studied in previous class, which is 8th class, okay. But here the next derivation, which is derived from Coulomb's law, we have to do here, okay. So pay attention. Now अब जो रिवाइंड मैं करूंगा वो सिर्फ कूलम्स लॉ करूंगा, उसके बाद रिवीजन में कुछ भी नहीं, आपको बहुत अच्छे लेवल में चलना है इधर पास लेक्चर में, है ना। Okay, I'm gonna write. कूलम्स लॉ, बेटा स्पेलिंग में ध्यान से देखना इसकी, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। Coulomb's law. Pay attention here, my dear. अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल्स को, बहुत ध्यान से सुनना बात को मेरी, अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल को कुछ दूरी पे रखा जाए, वो दूरी सपोज करो r होगी, है ना। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं इंग्लिश में करूँगा, या इंग्लिश में कर दूँ फिर बाद में हिंदी में कर लूँगा, तो आप बस समझ से चलिए वो क्या है। If two charged particles are placed at a distance, then Coulomb says that the force of attraction or repulsion, क्योंकि आपको मालूम है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपल करता है, नेगेटिव भी रिपल करता है, पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे दो नेचर है फोर्स के, एक है अट्रैक्शन और एक है रिपल्शन, है कि नहीं। तो हमको नहीं पता ना कि अट्रैक्शन की बात हो रही है कि रिपल्शन की बात हो रही है, इसलिए हम दोनों बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक लॉ स्टेट करने जा रहे हो, है ना, वो हर कंडीशन में सेटिस्फाई होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल को कुछ डिस्टेंस पे हमने मान लीजिए रख दिया, तो उसमें लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं, अगर इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड वाली चीज बढ़ रही है, इसका मतलब यह है कि इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड चीज भी बढ़ रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, अगर वो बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा और ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल placed at some distance is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब ये कहने का है कि जितना ज्यादा आप उन दो चार्ज पार्टिकल को पास में रखोगे उतना ही ज्यादा फोर्स रहेगा भैया, और जितना ज्यादा दूर कर दोगे उतना ही कम फोर्स हो जाएगा। और जितना ज्यादा चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल की वैल्यू, फिजिक्स में मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू, समझ में आई नहीं। तो जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू होंगी, है ना, उतना ही ज्यादा तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और उतना ही ज्यादा अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा।
मैं इसका एनालॉगस व्यू दूंगा आपको मैग्नेट से, तो आपको शायद समझ में आ रहा है जल्दी से, है ना। और नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट इट, छोड़ना नहीं, है ना। आपको पूछना है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होती है तो आपको तुरंत पूछना है, ठीक है ना। हाँ यस सर नहीं बोलना है, तुरंत पूछना है अपन को, ठीक है। तो चलते हैं आगे। कूलम्स लॉ लिख दिया है। कूलम्स लॉ में अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल को हमने कुछ डिस्टेंस पे रखा है तो उसमें उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उनके चार्ज के प्रोडक्ट के, मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, उनके चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली मैंने, बहुत सिंपल बात बोली, और उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। बात समझ आ रही? तो स्टे ट्यून्ड हियर। और ये कूलम्स लॉ करने के बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन भी दूंगा, तो ठीक है। बहुत ही ध्यान समझना है आपको, क्योंकि अब जो ये अब चैप्टर का मोमेंटम हो चुका है, ये आपका 9th क्लास का लेवल है, थोड़ा ज़्यादा लेवल है। तो जिन्होंने 8th क्लास में डामाडोल किया है पढ़ाई में, वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ताकि आपको बड़ी से बड़ी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। मैं लिखने जा रहा हूँ, मेरे साथ ही लिखेगा आप भी, क्लियर। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? पहले तो मैं आपको पहले ही कंस्ट्रक्शन बता दूंगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में मैं स्टेटमेंट दूंगा इसका, क्लियर। तो ये डेजिग्नेशन देख लो मेरा, ये मेरा जो फ्रेम है डेरिवेशन का कैसा है वो देख लो। मैं बीच में एक लाइन खींचूंगा और यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो F 2 चार्ज पार्टिकल। अगर शब्द वर्ड्स अगर छोटे दिख रहे हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम जा रही है। प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए, है ना। आप बस बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट बहुत जरूरी है। F2 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड, वैसे मैं बहुत सिंपल राइटिंग लेने की कोशिश कर रहा हूं, प्लेस्ड F2 charge particles, F2 charge particles Q, कैपिटल Q, मैं यहीं पे उसका नाम भी दे दे रहा हूँ, तो हमारा सपोर्शन भी यही हो जाएगा और जो है एक प्रकार से कंस्ट्रक्शन भी यही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा उसका कंस्ट्रक्शन भी यही हो जाएगा, और साथ के साथ उसके नीचे हमारा लॉ भी हो जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट फ्रेम है किसी भी डेरिवेशन का। लुक एट हियर, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स Q एंड स्मॉल q, दो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल हैं, एक छोटू है और एक बड़ा है ना। चाहते तो हम q1 और q2 भी ले सकते थे, चाहते तो हम स्मॉल q1 और स्मॉल q2 भी ले सकते थे, आपकी जो इच्छा है, आप जिसमें कंफर्टेबल है, आप बस इसी चीज का ध्यान। एग्जाम में चीजों को बिना याद करके जाएंगे तो अच्छा है, अगर आपकी समझ में चीजें हैं तो। F2 charge particles capital Q and small q R, अच्छा बेटा दो है ना, यहाँ पे एंड लग जाते हैं, यहाँ पे आर आ जाएगा, सिंपल इंग्लिश है। F2 charge particles Q and small q are placed at a distance of R, स्मॉल आर लिखा है, आप स्मॉल आर ही यूज करेंगे, कैपिटल आर आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, है ना। कैपिटल आर अवॉइड ही करेंगे, स्पेशल कंडीशंस में हम कैपिटल आर को यूज करेंगे एज ए डिस्टेंस। तो if two charge particles q and small q are placed at a distance of small r, then comma, then the force of attraction or
रिपल्शन। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज लिखी है, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो चार्ज क्यू है और स्मॉल क्यू है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, या पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, क्या पता। तो दोनों ही कंडीशन में कैसा भी चार्ज हो, ये स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा हर कंडीशन में, इसलिए हमने ऐसा लिखा, नहीं ऐसा नहीं। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज, अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज डायरेक्टली proportional, directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Is that clear or not? लिख दिया मैंने तो। अभी तक मैं मुझे मैंने बता रहा था, अब आपके सामने लिखा है पूरा लॉ। ऊपर सपोजिशन है if two charged particles q and small q are placed at a distance of small r, then the force of attraction या फिर repulsion is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. Clear? अब इसका डायग्राम बनाता हूं और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। Look at it. Suppose ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q, मैंने पॉजिटिव ले लिया इसको, और एक कोई छोटू चार्ज पार्टिकल है, ये भी स्मॉल q है, स्मॉल q है पॉजिटिव है, ये कैपिटल Q है एंड दिस इज योर स्मॉल q। इज दैट क्लियर और नॉट? है ना, ये कुछ डिस्टेंस पे रखें, कितने डिस्टेंस पे रखें? Suppose it's small r. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा उसकी कहानी चल रही है कि भैया अब ये दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो हमने जो डेफिनेशन दी है उसके हिसाब से अट्रैक्शन भी हो सकता था और रिपल्शन भी हो सकता था। अट्रैक्शन कब होगा, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो अट्रैक्शन होता। इसलिए मैंने दोनों चीज लिखी थी ताकि मेरा स्टेटमेंट और आपका स्टेटमेंट भी किसी भी कंडीशन में गलत ना हो। तो अब यहाँ पे लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें छोटू कौन है, ये, तो ये दूर भागेगा, ये बड़ा वाला दूर नहीं जाएगा, ये एक कॉमन सेंस है ना, छोटा चार्ज पार्टिकल है ये ज्यादा दूर भागेगा, किससे, बड़े वाले से। क्लियर और नॉट? तो ये जो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो जनरेट हो रहा है वो उतना ही ज्यादा होगा बेटा जितना इन दोनों की चार्ज की वैल्यू होगी, है ना। और इन दोनों के चार्ज की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब वो मल्टीप्लाई करने का जो वैल्यू है अगर वो बढ़ेगा तो साथ में इनका बीच में जो फोर्स है वो भी बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बड़े बड़े चार्ज पार्टिकल आ गए तो उनमें ज्यादा फोर्स लगेगा और छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल आ गए तो उनमें कम फोर्स रहेगा बजाय। और एक कंडीशन ये है कि डिस्टेंस सेम रहेगी इस सेक्शन में। अगर मैं सिर्फ चार्ज की वैल्यू को समझना चाहता हूं तो मैं पहले डिस्टेंस कांस्टेंट रखना पड़ेगा पहले मेरे को, तो है ना। और फिर अगर डिस्टेंस के लिए समझना है तो मुझे चार्ज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। दोनों में से कोई चीज कांस्टेंट रखते हैं पहले, पर हम समझते हैं बात किसकी, चार्ज की समझते हैं। सपोज करिए दो मैग्नेट है आपके पास, मैंने बताया था आपको कि मैं मैग्नेट की एनालॉजी से आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको। सपोज करिए वो दो मैग्नेट है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है आपके पास, है ना, और इतना बड़ा कोई मैग्नेट है आपके पास और एक छोटा सा मैग्नेट है।
बात समझ में आ रही है? एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और एक छोटा सा मैग्नेट है, इनको आपने कहाँ रख दिया, टेबल में रख दिया कुछ डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। कितने दूरी पे? 5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं 5 सेंटीमीटर कितना होता है, स्केल से नाप लीजिए, है ना। तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने इन दोनों मैग्नेट को रख दिया, तो मेरा सवाल अब ये उठता है कि कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर आपने बताया नॉर्थ पोल कहाँ पे है, साउथ पोल कहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात है। मान लीजिए मैंने नॉर्थ पोल बड़े वाले मैग्नेट का यहाँ कर दिया और छोटे वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल भी यहीं कर दिया, तो क्या होगा, सिंपल सी बात, दोनों क्या होंगे, रिपल होंगे। अरे होंगे रिपल, लेकिन छोटा वाला पार्टिकल, जो छोटा वाला मैग्नेट है वो दूर भागेगा, सीधी सी बात है। अगर उस छोटे मैग्नेट की जगह में एक और उसी बराबर या उससे बड़ा मैग्नेट ले